بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیئر ویل ویشرز، انسپائر گروپ کی طرف سے آپ کو سلام۔ چند دوستوں کے میسج کالز آئیں کہ بتایا جائے کہ واٹ از ڈفرینس بٹوین بی ایس نرسنگ اینڈ فارم ڈی، اور ان دونوں میں کون سی ڈگری بیٹر ہے۔ تو میں اپنے ویل ویشرز سے گزارش کروں گا کہ کوئی بھی ڈگری بیٹر یا کمزور نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بھی ڈگری کسی نے اچیو کی ہے ود نالج ود اسکلز، تو وہ ڈگری اس کی کوئی بھی ہو، کسی بھی سبجیکٹ میں ہو، تو وہ اس کے ساتھ اس طرح سے چلتی ہے جس طرح سے کوئی بزنس، کوئی انڈسٹری کسی بھی فرد کو اوپر لے کر جاتی ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کی بھیڑ چال ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے 10-12 سال پہلے چلے جائیں تو جو بھی گریجویشن کرتا تھا، بی اے یا بی ایس سی کرتا تھا، میل یا فیمیل، وہ بی ایڈ کیا کرتے تھے، بیچلر ان ایجوکیشن، جبکہ ان کا ٹیچر بننے کا کوئی ان کے امکانات نہیں تھے۔ وہ بیوروکریٹ بنتے تھے یا وہ ڈاکٹرز، انجینئرز کی طرف کوشش بھی کرتے تھے یا بہت بڑے آفیسر کسی اور محکمے میں، لیکن جب ان کی ڈگریز کو دیکھا جاتا تو ان کے پاس بی ایڈ کی ڈگری بھی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ بھیڑ چال ختم ہونی چاہیے کہ پلاننگ اس طرح سے ہو، گورنمنٹ کی پلاننگ ہو، پیرنٹس کی ہو، ٹیچرز کی ہو، کہ وہ انڈیویجولز کو، اسٹوڈنٹس کو جس ڈگری میں ان کی سکل ہے، ان کی مینٹل اپروچ ہے، وہ بہتر طریقے سے اس میں کام کر سکتے ہیں۔ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اس ڈگری کی طرف ہمیں لے کر جانا چاہیے۔ تو یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے، یہ دو ڈگریز ہیں، بی ایس سی نرسنگ ہے اور فارم ڈی ہے۔ بی ایس سی نرسنگ کی بات اگر ہم کریں تو پبلک ہاسپٹلز ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں۔ بی ایس نرسنگ کرنے کے بعد میل ہو یا فیمیل، تو یہ نرسنگ مکمل کرنے کے بعد جب انہوں نے کمپلیٹ کر لی تو ان کی کیریئر کاؤنسلنگ اس طرح سے ہونی چاہیے دوران ان کے اس کورس بی ایس کے دوران کہ یہ پبلک ہاسپٹلز میں ان 16 گریڈ یا پرائیویٹ ہاسپٹلز میں یہ کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پرائیویٹ کلینکس کے عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ جاب کرنی ہے۔ گورنمنٹ جاب اسٹوڈنٹس کو، انڈیویجولز کو پیسو کرتی ہے، وہ اتنے انرجیٹک اور ایکٹیو نہیں رہتے جس طرح سے وہ اپنی پرائیویٹ کلینکس میں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں یا فیمیل میٹرنٹی ہوم بناتی ہیں، ان میں جتنا وہ ارن کرتے ہیں، جتنا پیسہ کماتے ہیں، اتنا وہ پبلک سیکٹر پر وہ کام نہیں کر سکتے جتنا اس میں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ملٹری، نیوی، ایئر فورس میں بی ایس سی نرس کی سیٹس ہوتی ہیں، اور لوگ جو اپلائی کرتے ہیں وہ کیپٹن اور میجر کے عہدے تک، بلکہ اس سے بھی اوپر جاتے ہیں۔ میڈیکل اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اگر ہم اس کی بات کریں تو بی ایس سی نرسنگ یا ایم ایس نرسنگ کے بعد 17 گریڈ میں، بلکہ 18 گریڈ میں، 19 گریڈ تک یہ نرسز پہنچتی ہیں، اور یہ بطور لیکچرر، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر کے عہدوں پر تعینات ہو کر اپنی خدمات اسٹوڈنٹس کو تعلیم دینے میں صرف کرتی ہیں۔ تو وہاں پر ان کی پیز 18 اور 19 گریڈ بلکہ 20 گریڈ تک بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ٹریننگ انسٹیٹیوشنز کی بات کریں تو بہت سارے ایسے ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں جن میں ٹریننگز ہوتی ہیں اور بطور مینٹور، ٹرینر کے طور پر یہ کام کرتی ہیں۔ اگر ہم ابروڈ کی بات کریں تو پوری دنیا میں جتنی ڈیمانڈ نرسز کی ہے، میرے خیال میں کسی اور ڈگری کی نہیں ہے۔ جو لوگ نرسز بنتی ہیں، میل یا فیمیل، جب بھی وہ آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، یو ایس اے میں، یورپن کنٹریز میں یا اسلامک کنٹریز میں، براعظم ایشیا میں کہیں پر بھی وہ اپلائی کریں تو ان کی فوراً ڈیمانڈ آتی ہے، اور وہ رجسٹرڈ نرسنگ کی حیثیت سے وہاں پر اچھی پے کے ساتھ، سیلری کے ساتھ، پیکیج کے ساتھ وہ اپنا خدمات سر انجام دے سکتی ہیں۔ اسی طرح سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس نوکری کے جو غلامی ہے اس سے ہر فرد کو نکلنا چاہیے،
कि जो जॉब्स होती हैं पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, आप जॉब ना करें, आप अपना सेटअप शुरू करें, अपना काम करें। इससे ये होगा कि जो रैट रेसेस है उससे आप निकल जाएंगे और आप एक ऐसे शोबे में यानी कि खुद से एक्टिव होकर बड़े अच्छे प्रोसेस के साथ आप मैटरनिटी होम्स या हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स चला सकती हैं। लेकिन हम कंपैरिजन करेंगे फार्म डी के साथ। जिस तरह से डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होता है, ये पब्लिक हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इनकी पोस्ट होती है। पब्लिक हॉस्पिटल्स में ये 17 ग्रेड में इसी तरह से इसकी प्रमोशन होती है और अच्छा खासा ये पैसा कमाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये काम कर सकता है और इसके लिए एक अहम तरीन बात ये होती है कि फार्मेसीज में ये जा सकते हैं। ये फार्मेसीज अपनी बना सकते हैं या किसी फार्मेसी, अगर जिसके पास पैसा ठीक है, क्योंकि लाखों रुपए में डिग्री मिलती है, लेकिन डिग्री लेना मकसद नहीं, स्किल होनी चाहिए और अपनी फार्मेसी बनाकर कम से कम 1 करोड़ रुपया लगाए और अच्छी फार्मेसी के साथ ये जो फार्मासिस्ट होता है ये काम कर सकता है। इसी तरह से मिलिट्री में, एयरफोर्स में, नेवी में इसकी सीट्स हैं। और मेडिकल और एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मेडिकल और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी इसको बतौर लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर यह तैनात होता है। और ये जो स्टूडेंट्स, जूनियर्स लोग हैं जिनको फार्मासिस्ट के नॉलेज के हवाले से टीचिंग करना होता है, टीच करना होता है, उनको ये तालीम देता है। इसी तरह से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में भी इनकी खदमात बहुत ज़्यादा हैं। एक और अहम बात है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। ये जितनी भी हमारी मेडिसिन का शोबा है, मेडिकल का शोबा है, इसमें ड्रग इंस्पेक्टर्स तैनात होते हैं और ये अपने एरियाज़ में इस ड्रग को कंट्रोल करते हैं और इस सिस्टम को देखते हैं और इसमें बतौर वो ड्रग इंस्पेक्टर ये मामला पूरे पाकिस्तान में या अपने एरियाज़ में सर अंजाम देते हैं। अगर हम फार्मासिस्ट को अब्रॉड की बात करें तो इसकी भी काफ़ी वैल्यू है, यानी कि अब्रॉड में भी ये जाकर ये बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है। अब अगर हम इसको वाइंड अप करें तो मेरे एक दोस्त हैं जो कि DPT हैं, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापिस्ट, जबकि उनकी मिसेज LHV है। फिजियोथेरापिस्ट अगर शाम को 10,000 अर्न करके घर लेकर जाते हैं, तो जो उनकी मिसेज है जो कि सिर्फ LHV है, उसने अपना मैटरनिटी होम या अपना घर में एक सिस्टम बनाया हुआ है हॉस्पिटल का, क्लिनिक का, तो वो इसके मुकाबले में 10-15 गुना ज़्यादा पैसे कमाती है डेली। तो इसका आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये LHV की इतनी वैल्यू है, तो जो नर्स है वो तो बतौर डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस कर सकती है। वो मैटरनिटी होम बहुत ज़बरदस्त तरीके से हॉस्पिटल चला सकती है और इस तरह से वो काम करके जो इश्यूज़ हैं खुलूस नीयत के साथ उसमें करोड़ों रुपया अर्न कर सकती है। इस तरह से अगर मेल नर्स है तो वो भी इसमें बहुत पैसा कमा सकता है। तो रहा मकसद आपने दोनों डिग्रीज़ को जो भी इसमें जिसमें भी आपने जाना है, तो मेरे तो राय ये है जो फीमेल गर्ल्स हैं उनको BSc नर्सिंग में जाना चाहिए और जो बॉयज़ हैं इनको फार्म डी में जाना चाहिए। लेकिन जो बॉयज़ नर्सिंग में आएंगे वो फीमेल नर्सिंग से भी ज़्यादा अर्न करेंगे। और इसी तरह से फार्म डी की ये भेड़ चाल मैं बताने लगा हूँ कि हमारे हम जब निकलते हैं बाज़ारों में, सिटीज़ में, लाहौर सिटी है, मुल्तान है, तो बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं और उन पर लिखा हुआ है कि फार्म डी के लिए आइए, तशरीफ लाइए और एडमिशन ले और हम आपको फार्म डी की डिग्री देते हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा करें कि एक वक्त था कि B.Ed जस्ट लाहौर में या मुल्तान में हुआ करता था, लेकिन आज और चंद साल पहले चले जाएं, ये घर घर हो रहा था। हर यूनिवर्सिटी B.Ed करवा रही थी। जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो भी B.Ed करवा रही है और जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसमें भी B.Ed की क्लासेस हो रही हैं। मकसद ये था कि इसको इतना कमर्शियल बना दिया गया जिससे यूनिवर्सिटीज़ ने कमर्शियल सतह पर अर्न किया लेकिन लोगों की फ्यूचर को तबाह कर दिया। इसी तरह से फार्म डी का इतना वावेला इस वक्त है, अगर ये
सारे लोग इसमें भेड़ चाल की तरह सारे चले जाएंगे, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हर गली में फार्मेसी होगी, हर शहर में हज़ारों फार्मेसीज होंगी, और वो क्या अर्न करेंगे। एक वक्त था कि इसका जो लाइसेंस था उसको कम से कम 1 लाख पर वो रेंट पर दिया जाता था, आज 15 से 20 हज़ार पर वो रेंट पर दिया जा रहा है। तो आने वाले वक्त में इसका जो लाइसेंस है वो भी रेंट पर नहीं जाएगा, और इतने लोग इसमें आ जाएंगे, बेरोज़गारी हो जाएगी। जैसा कि आपने देखा है कि पंजाब में हर साल कम से कम 10,000 लोग जो हैं वो MBBS करते हैं, कोई 6-6.5 हज़ार के करीब हमारे पंजाब से, और बकिया कोई 3-4 हज़ार लोग बाहर से, चाइना से, कजाकिस्तान से, दीगर कंट्री से वो MBBS करने के बाद तशरीफ लाते हैं वापस। तो इस वक्त जो सूरत हाल है डॉक्टर्स की, जो MBBS डॉक्टर हैं कि उनके पास रोज़गार नहीं है। डिस्ट्रिक्ट काड़ा में अगर 1400 सीट्स एप्लीकेशन होती हैं तो सीट्स जस्ट कितनी है, जस्ट 25 सीट्स हैं। इट मीन्स के 1375 MBBS डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स वो बेरोज़गार हैं। मैं एक दिन एक डॉक्टर साहब के पास बैठा था, तो वहाँ पर 2 यंग डॉक्टर्स आए, उन्होंने कहा कि हमें जॉब पर रख लें आप अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि जी आप क्या लेंगे, वो कहने लगे कि जी मैं तो 30,000 दे सकता हूँ। तो वो इस पर एग्री हो गए, यानी कि सुबह उन्होंने 9 बजे आना था, रात 9 बजे तक वहाँ पर ड्यूटी देना थी 12 घंटे, और सिर्फ 30,000 रुपया। वो डॉक्टर जो प्राइवेट सेक्टर से करोड़ों रुपया लगाकर उसने डॉक्टर की डिग्री हासिल की है, लेकिन वो 30,000 जॉब पर वो एग्री हो गया है। और इसी तरह से ये फील्ड में इतने अगर लोग बढ़ते गए तो इस फील्ड का क्या बनेगा। लेकिन इस वक्त जो नर्सिंग की सूरत हाल है ये मच बेटर है, यानी कि इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है। नर्सिंग ख़ास तौर पर फीमेल नर्स जो होती है, इसको जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपना सेटअप, अपना क्लिनिक्स, अपना मैटरनिटी होम, अपना हॉस्पिटल वो अपने घर में ही बना ले, उसी के ऊपर वाली स्टोरी पर रहायश हो, नीचे उसका हॉस्पिटल हो, तो वो लाखों रुपया मंथली वो कमा सकती है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने जूनियर्स को, अपने कोलीग्स के बच्चों को आप गाइड करें, उनकी कैरियर काउंसलिंग करें कि आपने ये फील्ड है, ये भी है, और बहुत सारे फील्ड हैं, लेकिन जिसमें जाना है आप उसमें अपनी इतनी गिरफ्त, अपना कंट्रोल और अपने आप को प्लान्ड मेथड के तहत उसमें लेकर जाएं कि आपकी स्किल्स इतनी हो कि बहुत सारे अदारे आप उनकी ज़रूरत बन जाएं, तब तो आपको फ़ायदा है। या आप अपना सेटअप शुरू करें तो ये गुलामी की जंजीर जो है नौकरी वाली वो जहन से निकाल कर अपना अगर सेटअप शुरू करते हैं तो इसमें आपके पास वो स्किल्स हों जिससे आप डे बाय डे, टाइम एंड अगेन आप अपने आप को इम्प्रूव करते हुए आप बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं। मैं अपने वेल विशर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई डिग्री कमज़ोर नहीं होती, नकमी नहीं होती। हर डिग्री, जितनी भी छोटी से छोटी डिग्री आप कर लें, लेकिन उसमें आपकी अगर स्किल्स हैं तो आप कहीं पर भी बैठकर उसमें अपने अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन डिग्री करें, उसको खरीदें ना, उसमें मेहनत करें, उसमें स्किल्स हासिल करें, तो तब जाकर आप इंशाल्लाह बहुत बेहतर अपने आप को कर सकते हैं। थैंक यू। इसके जो लिंक्स हैं नर्सिंग और फॉर्म डी के वाले से ये डिस्क्रिप्शन में होंगे। आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है माय डियर वेल विशर्स, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक करें ताकि मैक्सिमम लोगों का इससे फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।